Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 part 2 of Logistics and Supply Chain Management, and here we will discuss inbound and outbound logistics. The topics to be covered are logistics inbound and outbound, which will cover suppliers to manufacturers and manufacturers to consumers, logistics management, integrated logistics and perspectives in logistics. Now first is logistics inbound and outbound. If your goods don't reach in time and they are of inferior quality, you as an entrepreneur earn a bad name too. So why give the consumer a chance? अगर आपके प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं या फिर inferior क्वालिटी के हैं तो फिर ये आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ब्रांड खराब करने वाली बात है, तो इसलिए कंज्यूमर्स को ऐसा चांस ही नहीं देना चाहिए. So plan it in a way that you ensure both quality and quantity in a reasonable time frame. इसलिए हमें पहले से ही ऐसी प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहे. A strike or a बंद as we call it in India is a happy situation for the fleet owners. जो कंपनी के खुद के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए अच्छी सिचुएशन होती है, बट अ बैड टाइम फॉर द ड्राइवर्स, मिल ओनर्स, small timers, laborers, suppliers, manufacturers and the consumers, because उनका नुकसान होता है. So that is the reason contingency planning plays a predominant role in shaping our SCM system. इसलिए contingency planning बहुत important होती है हमारे SCM system को shape देने में. Suppliers to manufacturers. The most complicated yet the most important phase in any production is the movement of raw materials from the supply point by the suppliers to the manufacturing unit. तो जो suppliers to manufacturers में transportation होती है ये most complicated situation होती है और most important होती है, क्योंकि हमसे raw materials move करते हैं suppliers से manufacturing unit तक, और जब वो timely नहीं होंगे तो पूरा process गड़बड़ हो जाएगा. So identification of the right type of suppliers is therefore the key of effective SCM system. इसलिए right type of suppliers select करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा SCM system effective way में काम कर सके. So movement of supplies from suppliers to manufacturers differs from place to place. Place to place ये matter करता है कि कैसे supplies हो रही हैं और किस हिसाब से movement हो रही है. So the steps involved in this total system are like what is the raw material that has to be moved, क्या हमें move करना है, कैसे move करना है, cheapest और best available suppliers के साथ क्या mode है, where is it available, कहाँ पे available है, और what are the credentials of the supplier, what is the mode of transport being utilized for the move, or is it cost effective, and other factors too. Terrain plays a predominant role in this aspect and you have to realize this point. Terrain बहुत important role play करता है transportation mode select करने में. जैसे आप diagram में देख सकते हैं कि अगर mountains हैं तो going condition होगी hilly roads, bends and zigs. Plains में smooth going, faster mode होता है. Desert में mix of good and bad going. And link roads में rough और slow होता है. So time factor mountains में slowest होता है, लिंक रोड्स पे वेरी स्लो होता है और प्लेन्स में फास्टेस्ट होता है. एंड इन माउंटेन्स इट इज़ प्रोन टू सिवियर एक्सीडेंट्स, लॉस इन सप्लाईज. इन प्लेन्स लेसर मैग्नीट्यूड होता है बट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसमें भी एक्सीडेंट्स अगर हो सकते हैं. फॉर डेजर्ट्स इट इज़ रेयर बट एट टाइम्स ओवर स्पीडिंग रिजल्ट्स इन डैमेजेस, बिकॉज डेजर्ट्स में रेत ज़्यादा होता है तो इसलिए ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ सकती. लूट्स, बंद एंड स्ट्राइक एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज़ वेरी प्रोन in link roads. For repair and recovery in mountains it is very difficult. Frequently breakdown occurs. Plains may available in plenty, like you have many garage in plain areas. Desert में repair and recovery facility restricted to only highways. And in link roads it is very rare, prone to severe breakdowns. Calamities अगर देखें तो mountains में road blocks, landslides, फ्लैश फ्लड्स होते रहते हैं. फॉर प्लेन्स फ्लड्स, बर्न्स, राइट्स एंड स्ट्राइक्स आर द मेजर कैलामिटीज. फॉर डेजर्ट वेरी रेयर सिंस पॉपुलेशन सेंटर आर फार अपार्ट. लिंक रोड्स में कैलामिटीज, फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शंस ओइंग टू कंजेशन of
population centers. Next is differences in urban and rural areas. Rural areas require tremendous amount of logistic supply and coordination to make the SCM system effective. रूरल एरियाज़ में हमें लॉजिस्टिक सप्लाई और कोऑर्डिनेशन ट्रेमेंडस अमाउंट में चाहिए होती है, तभी SCM जो है इफेक्टिवली अपना काम कर सकती है. वेरियस क्रिटिकलिटीज़ pertaining to logistic in rural areas are large quantities and more number of collection points. Distance between the manufacturers and users are large. क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो ये मेन क्रिटिकलिटी हो गई. उसके बाद डिस्टेंस जो है मैन्युफैक्चरर और यूज़र का वो भी ज़्यादा होता है. मटेरियल्स बल्की होते हैं, पेरिशेबल, एक्सपेंडेबल होते हैं एंड हैव इन्फीरियर पैकेजिंग. नाउ स्टोरेज प्लेसेस फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स. अगर हम एक एग्जांपल ले, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए स्टोरेज प्लेसेस क्या क्या अवेलेबल हैं? एट द फार्म इटसेल्फ, विलेज कलेक्शन सेंटर्स और कलेक्शन पॉइंट्स विद द प्रोसेसर. होलसेलर अपने पास रख सकता है. बिन्स एंड सेल्फ हेल्प स्टोर रूम्स अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, रिटेलर्स और मार्केट प्लेस और सेलिंग पॉइंट्स. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर रूरल एरिया SCM सिस्टम. जैसे सोर्स जो है, सोर्स से रोड्स के थ्रू वेयर हाउसेज में जाएगा. सोर्स में प्रोडक्शन हुई, फिर वेयर हाउसेज में गया थ्रू रोड्स. ऐसे ही फैक्ट्रीज से गुड्स जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. वेयर हाउसेज से सेंट्रल पॉइंट्स पे आएंगे गुड्स, मार्केट प्लेस पे जाएंगे, या फिर सेंट्रल पॉइंट से डायरेक्टली कंज्यूमर्स भी ले सकते हैं. और फ्रॉम मार्केट प्लेस ऑल्सो कंज्यूमर कैन हैव देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज. द प्रोक्योरमेंट इज डन जनरली closer home and very near to the towns and cities. Now coming on to the urban areas, the process is certainly different since it doesn't have to go through the exercise of moving through bad roads too often and poor storage system. urban areas का एक advantage ये है कि उसमें bad roads नहीं होती और इसीलिए वहाँ पे transportation जो है काफ़ी effective होता है. So for example you can say procurement is done generally closer home. homes के पास ही procurement होती है, centers बने होते हैं या फिर grocery stores होते हैं and very near to the towns and cities. Suppliers job is to supply the goods in time frame and price that is fixed initially. supplier की job होती है कि time frame में goods supply करे और price पहले से ही fixed होता है. company management generally contacts the supplier who has nominated go downs close to the place of manufacture for better and even time management. कंपनी मैनेजमेंट जो होता है वो जनरली सप्लायर्स को कांटेक्ट करता है गोडाउन्स के लिए जो कि मैन्युफैक्चरर के पास ही हों, ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके. अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, एयर एंड रोड्स एट प्लेस, इवन वाटरवेज आर यूज्ड. रेल, एयर, रोड और वाटरवेज हम यूज़ कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग टेक्स लेसर टाइम इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर आफ्टर. तो जब हमारे पास ही गोडाउन्स होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कम टाइम लगेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कम टाइम लगा है. एंड देयर विल बी अ बेटर मार्केट अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ हिज गुड्स. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल एरियाज. सो अर्बन एरियाज के कुछ एडवांटेजेस हैं एंड देयर आर डिसएडवांटेजेस टू रूरल एरियाज ओवर अर्बन एरियाज. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स. जो रोड्स हैं दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, इसलिए मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स थोड़ी स्लो होती है, टाइम ज़्यादा लगता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता. स्टोरेज फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है. प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाती. प्रिजर्व करना प्रोडक्ट्स को, फिनिश्ड गुड्स को प्रिजर्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. देन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू मार्केट एरिया इज़ वेरी लार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. ज़्यादातर रूरल एरियाज जो होते हैं उनमें मार्केट ठीक से अवेलेबल नहीं हो पाती. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स. नाउ फॉर दिस स्टेजेस इन्वॉल्व आर फर्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ गुड्स. सबसे पहले गुड्स की पैकेजिंग होगी, उनको फिर स्टॉक करेंगे हम वेयर हाउसेज या फिर कंटेनराइजेशन में. देन लोडिंग इनटू कैरियर्स और ट्रांसपोर्टेशन. कैरियर्स में लोड करेंगे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगी फिर गुड्स की वेयर हाउसेज से. डिलीवरी टू द नियरेस्ट होलसेलर्स. होलसेलर्स तक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होगी, फिर होलसेलर्स से रिटेलर्स लेंगे, देन रिटेलर्स टू मार्केट प्लेसेस और स्टोर्स एंड फाइनली टू द कंज्यूमर्स.
नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोडक्ट की मूवमेंट में। फर्स्ट इज पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है अगर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम लग गया तो। देन लॉसेज इन ट्रांजिट, बीच में लॉसेज हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स एंड कैलामिटीज़ हो सकती हैं बीच में, अगर एक्सीडेंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, या फिर कुछ अदर कैलामिटीज़ जैसे कि स्ट्राइक्स हो रही हैं या फिर रायट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनअवॉइडेबल डिलेज इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड बंद। लेबर अनरेस्ट, रैट्स एंड रोडेंट्स हो सकता है, रैट्स एंड रोडेंट्स की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे फूड आइटम्स जो होती है। ब्रेकेजेस ड्यूरिंग हैंडलिंग, हैंडलिंग टाइम पे जो डेलिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, तो इस वजह से कंपनी को लॉस होगा। जनरल कॉस्टिंग, सिंस एट टाइम्स इवन डबल हैंडलिंग इज इन्वॉल्व, तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लग सकती है कि कभी कभी जब डबल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन लॉजिस्टिक सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ट्रांसमिट होता है वेयर हाउसिंग में, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पिलफरेज हो सकता है। पिलफरेज इज द थेफ्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ पैकेज, यानी कि बीच में से हो सकता है कि उस टाइम पे पैकेज में से कंटेंट उसका कम कर दें। अगर 100 ग्राम का प्रोडक्ट है तो उसको उसमें से थोड़ा सा पार्ट थेफ्ट करके उसको 90 ग्राम्स का कर दें। देन वेयर हाउसेज में राइट्स एंड स्ट्राइक्स हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचते पहुँचते गुड्स हो सकता है पेरिशेबल हो जाए, या ब्रेकेजेस, लॉसेज, रैट्स एंड रोडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज हो जाए। दीज ऑल थिंग्स विल इफेक्ट द कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इन दिस सबसे पहले हमें समझना चाहिए एससीएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एससीएम के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिमांड मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। नाउ डोमेन्स ऑफ लॉजिस्टिक, so we sometimes do tend to ignore the role of logistics, but the supply and demand chain cannot be met without the integrated and close-knit support of the logistics. जब तक logistics completely support नहीं करेगा डिमांड और सप्लाई को, तो इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। डिमांड ठीक से मीट नहीं होंगी, सप्लाईज ठीक से नहीं आएंगी। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डील्स विद रिसीविंग, हैंडलिंग, मूवमेंट, स्टोरेज and delivery of material, services and finished goods in a SCM system to manufacturer and to customers. So logistic is required both at the beginning and end of it. Logistic शुरू में भी रिक्वायर्ड होती है जब हम प्रोडक्ट्स को रिसीव करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, फिर मूवमेंट होती है, और लास्ट में भी जब तक कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस that plans, implements and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to consumer requirements. Logistic एक supply chain process का part है जिसकी वजह से planning होती है, implementation और control करता है effective flow और storage को, गुड्स और सर्विसेज की, या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, जो एक ओरिजिन से लेके उसकी जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है वहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर। देन रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स अलग अलग रोल परफॉर्म करता है, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज टू इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को मैनेज करता है, उसके बाद वेयर हाउसिंग और स्टोरेज को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग कैसे होगी ये सब देखता है। देन इट लुक्स आफ्टर मटेरियल मैनेजमेंट एंड उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। उसके बाद इन्वेंट्री में हमें कितना रखना है और कैसे उसको मैनेज करना है, क्या हमारे पास स्टॉक होना चाहिए और कितनी जल्दी इन्वेंट्री को पूरा करना है, यानी कि नई इन्वेंट्री कब तक एनरोल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट, कि जो हमें ऑर्डर दिया गया है वो हम कितने टाइम में फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद डिमांड फॉरकास्ट, कि फ्यूचर डिमांड को कैसे फॉरकास्ट करना है, क्या फ्यूचर डिमांड है उसके हिसाब से कैसे प्लानिंग होगी। देन हैंडलिंग रिटर्न गुड्स, सर्विस सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड लोकेशन सपोर्ट, वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड सैल्वेज मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग लॉजिस्टिक्स।
Logistics planning has to be integrated with material and capacity planning in order to achieve maximum and optimum level of satisfaction. लॉजिस्टिक प्लानिंग जो है वो इंटीग्रेटेड वे में होनी चाहिए मटेरियल और कैपेसिटी प्लानिंग के साथ, ताकि हमें मैक्सिमम और ऑप्टिमम लेवल मिल सके सेटिस्फैक्शन का. सो द एम्फोसिस शुड बी ऑन reduction of cycle time and elimination of waste in order to increase customer satisfaction. The needs and requirements of our customer is variable and never a constant factor. कभी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है, pertaining to change. Therefore, in order to serve them better and be profitable, you got to tailor your logistics and ensure it to be more dynamic with passing time. इसलिए लॉजिस्टिक्स हमेशा चेंज होते रहने चाहिए कि हो सकता है एक प्रोडक्ट टाइम से पहले एक्सपायर हो जाए या फिर एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ख़त्म ही ना हो, तो उस हिसाब से कंपनी को नए नए प्रोडक्ट हमेशा इनोवेट करते रहने चाहिए. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव्स इन लॉजिस्टिक्स. वन हैज़ टू कंटिन्यूसली थिंक एंड थिंक राइटली टू गेट ओवर द रूटीन क्रिटिकलिटीज दैट आर इन्वॉल्व विद लॉजिस्टिक्स. हमेशा लॉजिस्टिक्स के साथ कुछ ना कुछ फ्लॉज और क्रिटिकलिटीज या लिमिटेशंस होती ही हैं, तो इसको ठीक से रिसीव करने के लिए और ठीक से इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा मैनेजर को सोचते रहना चाहिए कि आगे क्या होगा. सो सर्टेन न्यूअर पर्सपेक्टिव्स इन लॉजिस्टिक एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर प्रोड्यूस एट सोर्स, यानी कि सोर्स पे ही प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर. अगर सोर्स रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसी के पास अगर प्रोडक्शन होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लेबर भी चीप मिल सकता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकती है. एंड इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व लेसर मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस डबल हैंडलिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट. मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगी और डबल हैंडलिंग भी रिड्यूस हो सकती है. सो लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन विच विल इन्वॉल्व मोर नंबर ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट्स एंड एरियाज. नेक्स्ट इज फ्लीट मैनेजमेंट. कैन यू थिंक ऑफ मैनेजिंग योर ओन सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट? येस, सर्टेनली यू कैन थिंक. अपना ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो उसकी कॉस्ट अपने हिसाब से कम होगी. थिंकिंग ऑफ एडिशनल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, येस देयर आर एडिशनल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर की अगर हम सोचें और अपना ट्रांसपोर्ट हैंडल करें खुद तो उससे हमारी एडिशनल कॉस्ट कम हो सकती है. मेंटेनिंग अ फ्लीट इज कम्बरसम टुडे, बट इफ यू कैन मेंटेन अ गुड 60 व्हीकल्स अलॉन्ग विद अ माइनर रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, इट विल हेल्प यू इमेंसली ऑन अ रेनी डे. जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो या आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा हो, उस टाइम पे अगर आपके पास फ्लीट है अपनी तो तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.